Good morning, students. This is your project found in page number 44 in your NCERT book. So, plants and your seed. Take a clay pot or a tin can with wide mouth. So, I have this one. I have taken this one. This one is a hanging one. This is a hanging pot I have taken here. It has the wide open mouth with a make a small hole at the bottom of it. I have this small hole here. Okay, so I am taking this pot. I have the not clay pot, this is my plastic pot, and this is hanging pot. I used to carry this one to generate so many seeds and so many small baby plants here. So what to do next? Now we have the pot, then fill your it with the soil. Okay, we will fill afterwards. Let's see what type of seeds we have to put it. So put here 4 or 5 seeds or some kinds in the soil, same kinds in the soil, and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, then methi. So I have here mustard seed. You can see here this one, the mustard seed. Now I have also here the methi. Mustard seed we are calling that sarso. Then sesame is not with me. In place of sesame I am taking the corn seed over here. I have this corn seed. Then dhania, that is coriander. This one the coriander seed. Okay, so any one of this we have to take for a group. I am taking the corn seed over here because now we have the rainy season. I want to see how the plants is growing, the corn pot plant, and how it germinates like that. Okay, so I am taking this corn seed. Before going to the deep, you can see here the dal, this one the seed. So question is here, why this seed cannot germinate? You can find here this seeds are, though this is the dicot seed, but it splitted. See, this one and this one, 2 parts divided, and due to the splitting part of this, the baby plants which joined in mid of that was died. दो सीड्स के बीच में जो बेबी प्लांट्स होता है वो इसमें मर चुका है, क्योंकि जब ये इस तरह से होता है एक्चुअली, और जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तब हमें ये दाल मिलता है. तो इसका बीच का बेबी पार्ट ऑलरेडी डेड हो जाता है. इसलिए जब हम मसूर के दाल को भिगोते हैं तो इसमें से कभी भी अंकुर नहीं निकलता है और ये इट कैन नॉट स्प्राउटेड. सेम थिंग हैपन इन तोहर का दाल. ये दाल बनाना बहुत अच्छा है, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, बट हियर यू कैन फाइंड द स्प्लिटेड पार्ट. ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ थोड़ा सा. ये देखिए, ये दोनों पार्ट ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, और जब दाल बनाया जाता है इसको, तो इनके दोनों पार्ट को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. एक पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग. तो इससे क्या होता है, द बेबी पार्ट वी फाइंड दिस जॉइनिंग टू cotyledon part is dead here, you can see, and the dal cotyledon part also dry up. And now this is rich of protein because we have the cotyledon part of the seed here, and this is rich of protein. So this is all about the dicot seeds. Now we have here very general monocot seed. All the cereals are the monocot. Cereals मतलब जितने धान वगैरह होते हैं, चावल होते हैं, then जो रोटी पकाने की गेहूँ होती है, वीट होती है, ऑल आर द डाइकोट्स. आप देख सकते हैं ये डिवाइडेड नहीं है, ये सिंगल दाने हैं. एक दाना यहाँ है, सिंपल एक दाना. ठीक है, ये डिवाइडेड नहीं है, सिंगल है, मगर ये मोनोकोट है. मगर इसको पॉलिशिंग इतना ज़्यादा किया जाता है, इसको उबलाया जाता है, इसको झाड़ा जाता है, इसी से बहुत बार इसके अंदर से भी क्या होता है कि स्प्राउटिंग नहीं हो पाती है.
Okay, let's go and see how to put our corn seed in the soil and what is the result after 1 month. And you can see here my same hanging pot, and I put so many soil, but few space I keep vacant for putting more soil afterwards. I'm keeping the seeds over here like this. Now put a hole and then put the seed over here. This is corn seed I'm keeping here. Only 4 or 5 maximum corn seed. I'm pushing it very gently. At first I'm picking like this with my finger and then keeping the soil. Then here also. Soon after I will put little bit of water over it. Okay, now I'm keeping here so that the sun rays, airs, everything will be I'll get from here. After 1 month we will see what will happen with this. Same seed I have here, I'm going to put in my garden, and it will be nice to observe what will happen in the garden. Now you can see I'm not pouring water like this. I'm just sprinkling the water like this and keeping it here only so that it will germinate, started germination. Okay, only the half glass of water, not more than that. Now you can see this is my plant growing up here, and let me see, up to 6 inches. It grows up to 6 inches. Now you can see here the few leaves are coming out here. This is my same corn plant. Let's see what happened after 2 months. See, after 2 months this my corn plants grown up, and few are there. Before 1 month I planted there. You can see here how much they've grown. This is 12 and 12 and half, means near about this is 15 inches now, up to here to here. And you can see here the green leaves are coming out. Let's see what happened with the another plants with grown up, and I planted them before 1 month, means now they are in 3 months. Let's see. Now you can see here this plant I planted before 2 months ago. Now they are grown up. Their height is like me only, more than 5 feet. It is near about 5.5 feet, and some more seeds are coming out at the top. And here you can see we have the corn also here. See, this is the corn coming out now. Now this is also the baby corn, and this is a plant. You can view my small garden over here. So I have planted so many corn over here. So hope you will also get an idea how to plant the corn and get the new corns, and you can enjoy your rainy season with the corn in your hands. Okay. There are some plants which traps and eats the frogs, insects, and even mice also. These are called the pitcher plants. You can see here there are the modified leaves. Here one insect came here and it goes inside deep, and they have the liquid, they have the nectar over here, and because the sticky nature of these nectars, they goes inside down, and this is very slippery. So in Hindi you can say, देखिए बड़े आराम से
इनके नेक्टर्स जो बहुत स्लिपरी होते हैं, इस वजह से इंसेक्ट्स उसके अंदर घुस जाती हैं और धीरे धीरे ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इनका जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर वाले पार्ट में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये जो पिचर प्लांट्स होते हैं। ये सब बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इसके स्टेम्स में मिलते हैं। दे डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब ईच पार्ट ऑफ द एनिमल्स। Thus mice is coming here and it can trapped by the pitcher plant. You can see here. So you can see that this mice also here. और जैसे ये छोटा सा माइस इसके अंदर घुसता है और ड्यू टू द नेक्टर, द स्टिकी नेक्टर, वो अंदर घुसता है और इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है नेक्टर का, इस वजह से वो अट्रैक्टेड होता है। ज़्यादातर इंसेक्ट इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। चलिए चैप्टर से थोड़ा देखते हैं कि कैसे होते हैं। So you have seen the video clips over there about the pitcher plant. In your book it is written pitcher plant witch hunt. It can called as a carnivorous plant also and hunting plant also. There are some plants which traps and eat frogs, insects and even the mice. The pitcher plant is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. तो ये पिचर प्लांट मेघालय में मिलता है, इंडिया में बाकी दूसरे देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में मिलता है। इट हैज़ पिचर लाइक शेप्स एंड द माउथ इज कवर्ड बाय द लीफ। तो इसका माउथ जो पिचर लाइक इसका शेप होता है, आकार होता है, और इसका मुंह जो होता है कवर होता है लीफ से। एंड यू विल सरप्राइज टू नो दिस इज़ अ मॉडिफाइड लीफ ओनली। ये एक मॉडिफाइड लीफ है। The plant has special smell that attracts insects to it. जो नेक्टर हम बोल रहे थे, इसके अंदर में जो द्रव्य होता है, the liquid is a very special kind of having the very special kind of smell which attracts the insect. आपने वीडियो में भी देखा कि एक माइस सूंघते 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 कैसे उसके अंदर आ गया। When the insects lands on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. जैसे इसके मुंह पे आता है कोई भी इंसेक्ट्स, तो वो जल्दी से वहीं पर ही ये उसके ऊपर में कब्जा कर लेता है। क्योंकि कब्जा कैसा करता है, जैसे वो सूंघने के लिए अंदर जाता है और वहीं पर क्या होता है कि जो उनका नेक्टर्स होता है इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है, इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है, तो वहीं पर वो फिसल के रह जाता है। What a clever way to hunt. ये बहुत ही चतुराई के साथ हंट करने का एक तरीका होता है। तो ये पिचर प्लांट के बारे में आप जाने, जो एक स्पेशल तरह का प्लांट होता है। So many seeds. How many types of seeds you collected? Where will you find them? आपने इन्हें कहाँ से खोजा? Each of you should try to collect as many different types of seed as you can. After that, put all the seeds collection together. Now observe these seeds carefully. The shapes, the size, the color and the texture. कि वो कितना स्मूथ है और कितना स्मूथ नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है जो हमें करना है। ठीक है, नेम ऑफ द सीड, जैसे एक एग्जांपल दिया है राजमा, देन उसका कलर क्या है, रेडिश, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको लिंक में मैं दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। सीड्स दैट आर यूज्ड एज अ स्पाइसेस इन योर होम, सीड्स of vegetables, seeds of fruits, light seeds and seeds which are flat. तो मैंने भी जो कलेक्शन किया है ये मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, वंडरिंग सीड्स। वंडरिंग सीड्स का मतलब है ऐसे सीडें जो यहाँ वहाँ घूमती हैं। अब सीधी सी बात है, पेड़ तो अपनी जगह पे रहते हैं, मगर उसके सीड यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं। मान लीजिए कि आपके बगीचे में आपने एक सीड लगाया है, ठीक है, और चाहे वो सीड किसी भी फूल का हो, या तो आप मैरीगोल्ड ही ले लो।
मगर आप देखोगे 1 साल के बाद बगीचे के दूसरी छोर से कहीं से एक मैरीगोल्ड निकल के आ रहा है, एक पौधा निकल गया है। अरे अरे, ये गेंदा का गाछ यहाँ कैसे आ गया? सवाल तो आपके दिमाग में भी आता होगा। तो दैट इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब है कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। तो आपके बुक में क्या लिखा है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह कभी भी नहीं चल सकती। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। एक बार वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक ही जगह पर रह जाते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। उनके जो सीड होते हैं वह बहुत बड़े घुमक्कड़ होते हैं, ट्रैवल करने वाले होते हैं। दे कैन रीच फार एज वाइड। वो जितना दूर और जितना चौड़ाई में फैल सकते हैं उतना ही फैल जाते हैं। लुक एट द पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं फ्लाइंग सीड्स। कुछ सीड्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं इस तरह से। ये 2 सीड्स। हैव यू एवर सीन एनी सीड कैन फ्लाई? क्या आपने कभी देखा है कोई सीड को फ्लाई करते हुए? व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में से क्या बोलते हैं? लुक एट योर सीड कलेक्शन। गेस हाउ मेनी ऑफ दोज वुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग। आप उसमें से बताइए कि कौन लोग, कितने सीड्स ऐसे आपने कलेक्ट किए हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर 2, दिस वन, जिसे हम लोग चोर काटा भी बुलाते हैं अपने घरों में। दिस इट कैन नॉट फ्लाई बट कैन स्टिल ट्रेवल बाय द स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स। फर का मतलब है वो जो छोटे बाल जो होते हैं एनिमल्स के ऊपर, जैसे कुत्ते के ऊपर भी जो बाल होता है सॉफ्ट सॉफ्ट। ज़्यादातर फ़र हम लोग आर्टिफिशियल फ़र यूज़ करते हैं टेडीज़ वगैरह बनाने के लिए। आपके घर में जो टेडी होते हैं और जो डॉगीज़ होते हैं आर्टिफिशियल, नकली डॉगीज़ जो होते हैं, तो उसके ऊपर जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं नकली फ़र, आर्टिफिशियल फ़र। तो उसी तरह का असली फ़र जिस तरह से जानवरों में होता है उसे ही कहते हैं। और ये जो कांटा होता है, ये कांटा अक्सर क्या होता है, इनके बॉडी में चिपक जाता है। आप देख सकते हैं इस कुत्ते के बॉडी में भी, डॉगी के बॉडी में भी कैसे ये कांटा चिपक गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रेवल करते हैं थ्रू द एनिमल्स। तो यहाँ हमने देखा कि पहला तो ये उड़ने लगते हैं, ये वाले जो है हमारे सीड्स ये उड़ रहे हैं, और ये वाले सीड्स को आपने क्या देखा कि ये बॉडी में स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो क्या आपने सोचा कि कुछ और भी तरीका हो सकता है कि सीड्स यहाँ से वहाँ मूव करें? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। इन दिस वे दिस गेट्स फ्री राइड्स। राइड का मतलब है सवारी। तो अब क्या है कि इनके ऊपर जब ये चिपक जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं तो ये आराम से यहाँ से वहाँ सवारी इनको मिल जाती है जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सेट? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू द जॉर्ज मास्टर। जॉर्ज मास्टर कौन है? चलिए देखते हैं जॉर्ज मास्टर कौन है, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ेंगे। ओके, सीड्स ऑफ फ्रूट्स में आप कुछ भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि पीच है, एवोकाडोज है, एप्पल है, पियर है, ठीक है, ग्रेप्स है, बनाना है। तो किसी के भी आप जो यूज़ करते हैं खाना में, डेली में यूज़ करते हैं या कभी कभी खाते हैं, तो जो आप बहुत अच्छे से जिनको आप जानते हैं उसका बीज आप अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं और उसके बारे में लिख भी सकते हैं। तो एप्पल, गुआवा, अनार वगैरह, पीच, एवोकाडो, कीवी, ये सब बहुत कॉमन है जो आप हमेशा खाते हैं। ठीक है, पाइनएप्पल्स है, लीची है, तो जो भी है आप उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। और ज़्यादा आपके पास स्टोर करने का है तो आप एक छोटे से डिब्बा में स्टोर करके भी इनको रख सकते हैं। अपने लाइट सीड के बारे में तो देख लिया, मगर यहाँ बहुत सारे और सीड्स हैं जो अलग अलग जगह यूज़ होते हैं, जैसे ऑयल बनाने का काम आता है। ठीक है, कुछ सीड्स होते हैं जिनका मेडिसिन्स बनता है, कि कुछ सीड्स होते हैं जिनको स्पेशली यूज़ किया जाता है कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, यहाँ जिस तरह से है। कुछ सीड और भी हैं जिनको मसालों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो कुछ सीड हैं जिसका हम जूस बनाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम्स बनाते हैं। कुछ सीड्स हैं जिनको हम लोग, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सीड्स हैं जिनको हम लोग आलमंड वगैरह जैसे, तो उसको हम लोग अपने पिस्ता, काजू, ये सब हम लोग खाते हैं उसको अपना हेल्थ के ठीक रखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे सीड्स के, देखिए फ्लैट सीड्स भी है बहुत सारे।
तो सीड्स हमारे डेली के लाइफ में बहुत काम का होता है और हर फील्ड में हम लोग प्रतिदिन सीड्स का उपयोग कर रहे हैं, डायरेक्टली खाने के लिए या इनडायरेक्टली खाने के लिए। ठीक है, तो सीड कभी भी हम लोग ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सीड को डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सीड सिर्फ उगाने के लिए है, फल लगाने के लिए है और पेड़ बनाने के लिए नहीं। सीड्स को तो हम लोग डेली भी इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए। यहाँ देख सकते हो कुछ सीड्स हैं जो बहुत लाइट सीड्स हैं, डेडलियंस के सीड हैं यहाँ पे, और जो आराम से हवा में उड़ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब बहुत सारे सीड्स के बारे में जानते हैं, आप देखते भी हैं तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। सीड डिस्पर्सल में भी आपने अभी देखा है कि जो हवा से उड़ जाते हैं वो सारे लाइट सीड्स होते हैं, ये सारे लाइट सीड्स हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ वेजिटेबल सीड्स यहाँ हैं, जैसे बीन सीड, देन फ्रूट्स लीव्स, यहाँ गर्ड्स हैं, देन पीज है, स्वीट कॉर्न्स है, स्प्राउट बीन सीड्स। ये सारे जो सीड हैं ये वेजिटेबल सीड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो आपके घर के आसपास है, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। यू कैन सी द फ्लैट सीड्स, बहुत सारे सीड्स फ्लैट होते हैं, पम्पकिन सीड है, ओके, देन गर्ड का सीड है। इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत सारे सीड जो फ्लैट सीड होते हैं वो यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से आप कुछ भी दो का नाम आप लिख सकते हैं कौन से फ्लैट सीड्स है। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड डिस्पर्सल क्या होती है, जिसे हम साधारण लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि सीड डिस्पर्सल मूवमेंट होती है सीड्स की, क्योंकि पेड़ तो अपने जगह से हिल डुल नहीं सकते, मगर उनकी जो सीड्स होती है वो यहाँ से वहाँ डिस्पर्स होती है या मूव करती है। सीड डिस्पर्सल इज अ मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। There are 5 main modes of seed dispersal: gravity, wind, blasting, water, and by the animal. So these are the main agents of the seed dispersal. There are 5 main modes of seed dispersal: gravity, wind, blasting, water, and by animal. Some plants are serotinous and only disperse their seed in response to the environment stimulus. ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, मतलब पृथ्वी के सेंटर से जो ताकत निकलती है जो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी चीज़ जब हम आसमान की तरफ उठा के फेंकते हैं तो क्या होती है, वो नीचे ज़मीन पर गिरती है। मगर नीचे ज़मीन पर क्यों गिरती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का जो होता है वो उसे अपनी ओर खींचता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में होती है और कुछ लिमिट तक होती है। कुछ दूर के बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है। जब आप अपना वो चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर आपको स्काई में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, अनीता इन द स्पेस चैप्टर जब हम लोग रीड आउट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी काम करती है। ठीक है, तो कुछ सीड्स जो होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली फ्रूट के अंदर जो सीड्स हमें मिलते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे फ्रूट गिर जाती हैं और ये जो सीड्स हैं ये नीचे ही ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सीड्स नीचे गिर रही हैं। एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल और सीड्स आर वायलेंटली ejected from the plant so that they fall away from the parent plant. तो यहाँ आप देख रहे हैं जो सीड डिस्पर्सल हो रही है वो क्या होती है, जिसे हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, जिसे हम ब्लास्टिंग भी बोलते हैं। वो क्या होता है कि उसका सीड फट के फूल जाती है जब ये राइप हो जाती है, मतलब पक जाती है। और जैसे हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है तो ये सीड फट के दूर दूर तक बिखर जाती है। यहाँ देखते हैं फ्रूट्स of certain plants such as papaya, pea and beans burst open and they are ripe, spreading and the seeds in all directions. This mechanism of seed dispersal is called the explosion और the bursting भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड हो गई। फर्स्ट हो गई ग्रेविटी, सेकंड हो गई एक्सप्लोजन और द bursting।
तो याद कर लें, ग्रेविटी में आप किसी को भी बोल सकते हैं। मैंगो ले सकते हैं जो ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाता है, ठीक है। और जो एक्सप्लोजन से होती है, 2 चीज़ आप याद कर लो, पी जो आपके आसपास ही होती है, बीन्स, ठीक है ना। पी को आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए, तो ये प्री ब्रस्ट करती है, ऐसे उसका ओपन हो जाता है, सूख जाता है ऊपर का जो उसका छिलका होता है, जो वो सूख जाता है और ये ब्रस्ट करके ऐसे चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट है हमारी विंड, डिस्पर्सर ऑफ सीड थ्रू द विंड। तो आप देखेंगे ये डैंडलाइन्स है, तो ये हमारे स्कूल्स में भी और हमारे घर के आसपास भी सिर्फ उड़ते हुए ऐसा नजर आते हैं। बच्चे तो कभी कभी चिढ़ाने भी लगते हैं कि देखो देखो भूत है अपने आप उड़ रहा है, मगर ये भूत नहीं बच्चों, ये सीड होती है जो एयर के कारण उड़ने लगती है यहाँ वहाँ, ठीक है। तो हमारी अब फिर से हम अगर रिकॉल करें वाटर में जाने से पहले, तो फर्स्ट हो गई ग्रेविटी, सेकेंड हो गई ब्रस्टिंग, थर्ड हो गई एयर एंड नाउ वाटर। कोकोनट सीड इसका अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे बुक में भी है, जहाँ पर जो कोकोनट प्लांट से कोकोनट जब नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, ये सीड थ्रू वाटर यहाँ से वहाँ चला जाता है और नया प्लांट यहाँ से ग्रो करने लगता है। इस तरह से लोटस में भी ऐसा ही होता है, लोटस भी थ्रू वाटर यहाँ से वहाँ इसका सीड डिस्पर्सल होते हैं, ठीक है। वाटर डिस्पर्सल बहुत तरह के चीज़ों में मिलता है, जैसे कोकोनट, नेफा, पिंक पॉन्ग, लोटस एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ एनिमल्स, ये तो बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। तो चूंकि हम एनिमल किंगडम के हैं, वर्टिब्रा हमारा जो एनिमल किंगडम में हमारा फैमिली होता है जिसका बैकबोन होता है, ठीक है। तो हम वर्टिब्रे में आते हैं, तो वर्टिब्रे में सब लोग आते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स में हमारे बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये सब आते हैं, सारे मैमल्स आते हैं। तो ये सारे वर्टिब्रा वाले जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। चिड़िया मुँह पे ले करके भागती है, ठीक है। और कुछ तो एनिमल्स भी होते हैं जो मुँह से ये फलों को खाते हैं और यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स कैसे सीड को यहाँ से वहाँ मूव करा रहे हैं और उनको फ्री राइड दे रहे हैं, ओके। तो कुछ सीड्स हमने यहाँ देख लिया कि कुछ एनिमल्स से ग्रो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, कुछ वाटर से मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, कुछ ब्रस्टिंग से करते हैं, कुछ विंड से करते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम बात हो गई कि सीड डिस्पर्सल के जो एजेंट्स हैं, मतलब एजेंट्स का मतलब होता है कि जो वाहक है वो अभी तक हमारे 5 हैं, 5 से भी ज़्यादा हम लोग उसको बना सकते हैं, सब डिविजन्स कर सकते हैं, मगर मेनली 5 हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटी, ओके, उसके बाद है हमारा विंड, ब्रस्टिंग, वाटर, देन थ्रू द एनिमल्स। एक बार फिर से आप बोल सकते हैं साथ में, ग्रेविटी, ब्रस्टिंग, विंड, वाटर एंड एनिमल, ओके। 5 याद रखिएगा, आपके हाथों में 5 फिंगर्स होते हैं ना, तो बस याद रखिएगा कि 5 एजेंट्स हैं हमारे सीड डिस्पर्सल होने के। यहाँ पर सीड डिस्पर्सल एनिमल के थ्रू से होता है। इस तरह से देखिए, ये जो कांटे हैं, हम लोग इसको कांटा बोलते हैं, ये सर्दियों में ज़्यादा दिखता है, सूख करके हमारे स्वेटर्स में चिपक जाता है। तो ये कांटा कुछ इस तरह से होता है। यही कांटा क्या हुआ था, हमारे जो जॉर्ज मिस्ट्रल हैं उनके कुत्ते के फर में भी लग गया था, है ना, उनके डॉगी के फर में लग गया था, उनके ड्रेस में लग गया था, यही वाला कांटा। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एनिमल्स, विंड, वाटर एंड फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसमें से ब्रस्टिंग अभी थोड़ी सी नहीं दिख रही होगी आपको यहाँ, मगर फिर भी आप देख लीजिए कि एनिमल के थ्रू से कौन कौन सा सीड डिस्पर्स होता है, विंड के थ्रू से कौन कौन सा सीड डिस्पर्स होता है, देन वाटर के थ्रू से कौन कौन सा सीड डिस्पर्स होता है, एंड बाय फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन कौन सा सीड डिस्पर्स होता है। ये है हमारे जॉर्ज डे मैस्ट्रल। आपके बुक में ये जॉर्ज मैस्ट्रल के नाम से हैं, जिन्होंने वेल्क्रो की आइडिया ली थी इन्हें सीड्स के नेचर को देखे। ये है हुक लाइक स्ट्रक्चर, ओके।
When he observed the seeds under the microscope, he saw that seeds had many tiny hooks which got stuck to the cloth or fur. This gave the master an idea of making the velcro. तो यही हुक से देख रहे हैं, ऊपर से एक तरह का हुक है, नीचे से अलग तरह का हुक है. ऊपर वाले को हम लूप बोलते हैं, नीचे वाले को हम हुक बोलते हैं. और यही आइडिया मिला उनको वेलक्रो बनाने का. He made the velcro. वेलक्रो में भी आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए उस तरह से लूप्स बने हुए हैं और नीचे हुक्स बने हुए हैं. Uses of velcro. This is very important. Computer record traps, clothing of irons. आपके बुक में तो इससे भी ज़्यादा दी हुई है, ठीक है. क्लोथ्स में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में एंड मेनी मोर. तो ये बहुत जगह में वेलक्रो यूज़ होता है. इवन आजकल तो कुछ कार भी ऐसे बने हैं जो वेलक्रो से ही उसका जो सूट बनाया गया जो फिट होती है. तो वेलक्रो हैविंग द मेनी यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हियर. अभी तक आप बहुत कुछ देख चुके हैं. आप तो मिस्टर जॉर्ज मार्शल को अच्छा से पहचान भी गए होंगे. तो चलिए देखते हैं कि आपके बुक में इनके बारे में क्या लिखा है. दिस इज हैपन इन 1948. वन डे जॉर्ज मार्शल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग. तो आपने इससे पहले भी इसको देखा है, आप जान चुके हैं कि वो अपने डॉगी के साथ आ रहे थे. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर. वो बहुत ज़ोर से आश्चर्य में पड़ गए कि कुछ सीड्स थे जो उसके क्लोथ्स में और डॉगी के फर में आके चिपक गए. ही वंडर्ड दैट ही मेड देम स्टिक. वो सोचते कि कैसे करके ये ऐसे स्टिक हो रहे हैं. सो ही ऑब्जर्व द सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर में इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया. ही सॉ दैट द सीड्स हैज मेनी टाइनी हुक्स, जो आप देखें अभी थोड़ा देर पहले है ना, और which got stick to the clothes or the fur. यही कारण है कि ये क्लोथ्स में और जो फर में चिपक गए, ये हुक्स के कारण से, ठीक है. This gave Marshall the idea of the making the velcro. यहीं से उनको आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का. He made materials with the similar tiny hooks that would stick. उन्होंने सेम तरीके से का इस्तेमाल करके इस तरह के मटेरियल को बनाया जिसमें छोटे छोटे हुक्स हों. वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मेनी थिंग्स. ये वेलक्रो बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे क्लोथ्स में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट में एंड मेनी मोर. व्हाट द वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. व्हाट द वे. सच में मुझे भी आश्चर्य लगता है कि जिसको कुछ सीखना होता है तो वो कहीं से भी कुछ भी अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं ना. तो बच्चों मैं यही बोलूँगी कि सीखने के लिए नेचर में, आपके घर में, आपके आसपास में बहुत कुछ है जो अभी भी सीखना बचा हुआ है. हो सकता है कि दुनिया इन चीज़ों के बारे में जानती नहीं है. तो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगी कि आप भी उन चीज़ों को माइन्यूटली देखना, सोचना शुरू कर दीजिए जो हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल नहीं हो. आप जानना उसके लिए आपके अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, तो चलिए इनसे इंस्पायर होकर हम चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच इन द डिफरेंट प्लेस. तो यहाँ तो हम देख रहे हैं हमारी नन्ही सी गिलहरी है जिन्होंने सीड पकड़ा हुआ है और ये ले लेके कुदक कुदक के पास से गुजरने वाली हैं. हमारे पास ये बर्ड्स हैं जो चोंच में अपना सीड पकड़ी हुई हैं और ये भी लग रहा है कि सीड लेके पूरा खा भी लेंगी. मगर यहाँ तो और भी मज़ेदार बात दिख रही है मुझे. ये कोकोनट गिरा हुआ है और ये पानी पे गिर गया है. मतलब क्या है इसका? ओके, चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है. चलिए. सम प्लांट्स स्प्रेड्स द सीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. व्हेन द soybean spores are ripe, they burst and seeds are thrown out. कुछ है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक सीड ट्रेवल करते हैं यहाँ से वहाँ तक. तो फर्स्ट लग रहा है जो सोयाबीन्स होते हैं या तो फिर मुझे लगता है मटर के पेड़ भी ऐसा ही होते हैं जो ब्रस्टिंग करते हैं, ब्रस्ट करते हैं. जब ये पक जाते हैं, राइप का मतलब पक जाना, तो इसके सीड दूर तक बिखर जाते हैं और वहाँ जाके फिर नया प्लांट ग्राउंड करते हैं. हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड? हाँ, पी का प्लांट का तो मुझे सुनाई देता है. कभी कभी अचानक ठंडे के मौसम में पी का प्लांट देखते हैं, अचानक से फुट फट क्या हुआ, अरे अरे चाचा वो ब्रस्ट कर गया. ठीक है, चलो आप भी कभी सुनने की कोशिश कीजिए, अपने घरों में पी का प्लांट लगा के देखिए. अभी तो सीज़न भी आ रही है, आप कम से कम अक्टूबर से पी का प्लांट लगाइए तो वो नवंबर में आपको फटने की आवाज़ भी आ जाएगी.
चलिए आगे देखते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड did not spread and remain in a one place. Oh my God, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर एक ही जगह एक ही पेड़ हमेशा रह जाए और वहीं पर सीड ग्रो करें तो वो बेचारा तो ग्रो पहला कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेड़ तो हमारे बहुत बड़े होते हैं ना। ज़रा ऊपर देखते हैं, देखिए पेड़ तो बहुत बड़े हैं और उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ अगर लगेंगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे कभी, उसके शैडो से ढक जाएंगे और खाना भी उतना ढंग से नहीं मिल पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको। और इसीलिए सीड को दूर दूर जाके ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। ढंग से खाना भी नहीं मिलेगा और उनको शैडो मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। देन मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेडेड। तो डिफरेंट वे हम देखते हैं कि कैसे सीड स्प्रेड करता है। हु केम फ्रॉम वेयर? हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another. Knowingly, unknowingly, we bring the seeds from plants that we find beautiful or use. It grows them in our garden. मतलब हम लोग knowingly unknowingly ये सीड को एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम कर ही देते हैं। जैसे हम अगर नर्सरी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से भी हमको सीड्स के प्लांट्स उठा करके लाते हैं और जो अपने घरों में लगाते हैं तो हम उसको यहाँ से वहाँ मुफ्त की ट्रेवल करा ही देते हैं। लेटर द सीड ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। मेनी इयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो देयर अर्लियर, दे वेर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। डिड यू नो whether chili came to our country? This brought to India by trades coming from South America. Today we cannot think of food without chilies. तो उस तरह से हम लोग को पता भी नहीं लगता, कुछ लोग लाते हैं और यहाँ लगा देते हैं और बहुत जनरेशन टू जनरेशन या सालों बाद हमें पता चलता है कि ये पता नहीं कहाँ से आया। मगर हम लोग इतने यूज टू हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ चिलीज़ की बात हो रही है, जो साउथ अमेरिका से किसी ने कभी लाया होगा वो सीड और यहाँ लगा दिया होगा। मगर आजकल हम लोग मिर्ची जो रोज़ के दिनों में हम खाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि नहीं ये मिर्ची हमारे देश की नहीं थी, ये किसी विदेश से आई हुई थी उसकी सीड और यहाँ हम उसे खा रहे हैं। तो रीड दिस पोएम इज़ वेरी गुड और आप इसको एंजॉय कीजिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये पोएम रीड करके आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये पोएम।